Namaste. In today's period, we are going to discuss the last part of this trigonometric function, that is chapter 3, trigonometric function, solution of triangles. We have already completed trigonometric equation and their solutions. Second, inverse trigonometric functions. These two first parts we have completed. The last part, that is solution of triangle, is we are discussing. In solution of triangles, the first definition is what is polar coordinates. Before seeing polar coordinate, we know what is the Cartesian coordinates. So what are the Cartesian coordinates? If I consider x and y axis and any point P, then we know that this point P can be expressed in this plane by using its Cartesian coordinates, that is x and y. So x and y, this order period is called as a Cartesian coordinates of this point P. We can say, after drawing a perpendicular, this number is x, where this perpendicular is occurred on the positive x-axis here, and on y-axis, if the perpendicular takes the number y, then this y we are seeing as a second coordinate of point P, and this x as a first point coordinate of the point P. So x and y, which are the number at the perpendicular drawn from point P, these two numbers we are considering as a coordinates of the point P, which decide the location of point P in the plane. So that P can be in second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, or it can be on the axis. So according to that position, we can write the coordinate of the point P, which we call these as a Cartesian coordinates. Now in our 12th, we want to discuss another coordinate, that is polar coordinates. So to discuss polar coordinates, we are considering this point O as a fixed point in the plane. Later on, we are considering this OX, line OX or ray OX as a fixed ray in the plane. After this O is called as a pole, and the ray OX is called as a polar axis. O is a pole and ray OX is polar axis. Now we are considering one point P in the same plane other than this O. So P, if I consider this at this position, then if we join this P with O, so this OP is a particular distance. If I call the distance as a small r, and this OP makes an angle with OX, if I call this angle as a theta, then this r is a distance of that P from O, and this theta is the smallest positive angle made by this OP with this OX. So this angle and this r, when we write in this form, we call this form as a polar coordinate. Coordinate decides the position of the point P either in Cartesian system and in polar system. So what is the purpose of coordinates? To decide the point in the plane. So we are having already Cartesian coordinates of any point. We are deciding polar coordinates. So what is required in polar coordinate? Distance of that point from the fixed point and the angle made by that OP with fixed line. So these two information, r and theta, are required to write the coordinate of the point P
प्रेजेंट इन द प्लेन। अब यहाँ और एक बात समझ में आपको लेना है कि ये जो P है, अगर आप यहां लेते हैं इसी लाइन के ऊपर, तो होगा क्या, उसका जो O से डिस्टेंस है वो R नहीं होगा, कम होगा, इसलिए ये R चेंज हो जाता है। अगर मैं इस डिस्टेंस को R1 कहता हूं, O से लेकर इस P' तक का डिस्टेंस अगर R1 है, तो इस P' के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं R1, थीटा। भले एंगल सेम है, एंगल सेम होगा, लेकिन उसका डिस्टेंस O से अलग है, इसीलिए उस डिस्टेंस को अगर R1 कहते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स तैयार होते हैं जिसको आप कह रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स P के, वो R1 थीटा होगा। सो R1, थीटा ये P' के होंगे, और P के है R, थीटा। आप अगर दूसरे पोजीशन पे इस OP के ऊपर अगर नहीं लेते, दूसरे पोजीशन पे अगर P को यूज करते हैं, मान लो अगर आप P यहाँ यूज करते हैं और इस O के साथ उसको अगर ज्वाइन करते हैं, और ये डिस्टेंस आपने अगर यूज किया है, तो ये अगर मान लो R2 है, कोई भी एक डिस्टेंस होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस है, तो ये R2 है, लेकिन इस OX के साथ जो एंगल तैयार किया है, इस OP अगर ये P यहाँ शिफ्ट करते हैं और ये आपका P है, तो आपने इस डिस्टेंस को R2 कहा है, लेकिन ये एंगल भी चेंज हो रहा है। ये एंगल आप अगर यहाँ इसको कहते हैं कि θ2, तो इस P के पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते हैं। उसका पहले डिस्टेंस O से कितना है वो लिखना है, तो डिस्टेंस है R2, और उसका पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल OX के साथ कितना है, तो ये θ2 मिला है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि P अगर चेंज करते हैं, P की लोकेशन चेंज करते हैं, तो P के पहले और दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी चेंज होती है। ये आपको यहाँ से याद में रखना है। So according to new position, we are getting new values of R and theta. So for each P, we are having one R and one theta. So R and theta are unique for considered point, taken point. So these two we are calling as a polar coordinate of the point. So polar coordinate requires first information, that is distance from the considered pole, and the angle. Second information is the angle which is made by that OP with polar axis. तो ये दो इंफॉर्मेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के डिसाइड करते हैं। तो कोई भी पॉइंट P अगर प्लेन में है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए ये R एंड थीटा कैपेबल है। यहाँ P को आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू R थीटा, और इस R के लिए आप कहना चाहते हैं एज ए रेडियस वेक्टर, R इज कॉल्ड एज ए रेडियस वेक्टर, एंड द एंगल मेड बाय दैट OP विथ पोलर एक्सिस इज कॉल्ड एज ए वेक्टोरियल एंगल। और इस एंगल की जो रेंज है, ये आप कह सकते हैं ये P यहाँ भी हो सकता है, तो उस केस में एंगल 0 होगा। तो आपको यहाँ 0 से लेके ये एंगल 0 से लेके यहाँ तक आ सकता है, कंप्लीट रोटेशन आ सकती है 360, लेकिन 360 और 0 की जो पोजीशन है वो सेम है, इसलिए आप अगर 0 को अटैच करते हैं थीटा के लिए, तो 0 अगर इक्वल टू थीटा है, तो आप 360 वाली जो केस है उसको स्ट्रिक्टली लेस देन कर सकते हैं। तो 0 या 0 से बड़ा और 360 से छोटा, ये रेंज का एंगल आप थीटा की वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एज वेल एज ऑन द एक्सिस, दिस थीटा कैन टेक द वैल्यू। अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन है पोलर कोऑर्डिनेट की। तो आपका नेक्स्ट है, ये आपको मालूम है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये इसको ना थीटा की जरूरत है ना उसके डिस्टेंस की जरूरत है। इस P का आप डिस्टेंस फाइंड नहीं करते हैं, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या जरूरत है आपको, सिर्फ P से परपेंडिकुलर जहां आते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर, वो दोनों जिन पॉइंट्स के पास आते हैं, वो दोनों जिन पॉइंट्स के पास ड्रॉ करने के बाद आते हैं, वो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है, वो पॉइंट का जो नंबर है करस्पॉन्डिंग एक्सिस के ऊपर,
वो नंबर ही P का पहला और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, और इसको कहते हैं आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और इसको कह रहे हैं आप पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ एक छोटा सा वर्क आगे का ये है कि आप ये दोनों में रिलेशन देना चाहते हैं, ये जो आपका एक्स एंड वाई है और ये आपका जो आर एंड थीटा है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में आप रिलेट करना चाहते हैं, रिलेशन देना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट है रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना है। तो ये समझने के पहले इसका अगर एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, अगर यहाँ पोल लेता हूं, वो ये आपका पोलर एक्सिस है और यहाँ P है, P का डिस्टेंस है 3 आप कोई भी कह सकते हैं, 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो एंगल है ये मान लो 30 डिग्री। तो ये जो P है, इस P के पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उसका डिस्टेंस है O से P तक का 3 यूनिट्स, और ये एंगल आपको मिला है जो पॉजिटिव कैटेगरी का है, एंटी क्लॉकवाइज आपने मेजर किया है। तो ये अगर 30 है तो P के पोलर कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? पहले आपको R की वैल्यू रखनी है, जो डिस्टेंस होगा P तक ओरिजिन से, O से। तो आपको ये पहला डिस्टेंस लिखना है, इसका मतलब 3 लिखना है, और उसके बाद में जो एंगल आपने यहाँ यूज किया है वो लिखना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट इस तरह से होंगे। आप ये एंगल भी रेडियन में लिखना चाहते तो ये 3,30 को कहते हैं π/6। तो इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट डिफाइन होते हैं, पहला डिस्टेंस होता है और दूसरा एंगल होता है, और कार्टेशियन में दोनों भी डिस्टेंसेस होते हैं। तो आप आगे के पार्ट में दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। अब रिलेशन डेवलप करने के लिए एक बार फिर से एक्स एंड वाई एक्सिस को आप यूज करके उसको आगे के पार्ट में लेके जाना चाहते हैं। फिर से एक बार पोलर कोऑर्डिनेट डिसाइड करने के लिए आपको पहले पोल डिसाइड करना पड़ता है, और उसके साथ में पोलर एक्सिस डिसाइड करनी पड़ती है। इफ आई कंसिडर O एज अ पोल एंड OX एज अ पोलर एक्सिस, and we take a line along OX, जो आप पोलर एक्सिस कह रहे हैं, उस पोलर एक्सिस से एक लाइन लेना चाहते हैं। पोलर एक्सिस तो एक रे है, उसको अगर दोनों साइड पे एक्सपांड करेंगे तो एक लाइन तैयार होगी, और उस लाइन को आप अगर कंसिडर करते हैं एक्स एक्सिस, जैसे OX से पास हो रही है लाइन जो दोनों साइड पे इनफाइनाइट है, उसको आप कहना चाहते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को जो परपेंडिकुलर है और O से पास होती है उसको कहेंगे वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस को आपको कहाँ लेना है, उसकी भी एक लोकेशन है। तो जो पोल है उससे आपको लेना है एक्स एक्सिस, OX से पास होने वाली लाइन आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो एक्स एक्सिस होगी, और OX को परपेंडिकुलर जो लाइन है, जो O से पास होती है, उसको कहना चाहते हैं आप वाई एक्सिस। तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन फिगर के बारे में है। उसके बाद में आपका टारगेट है, यहाँ एक पॉइंट लेना चाहते हैं जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपको रिलेट करना है। पहला होगा पोलर कोऑर्डिनेट, दूसरा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो आप इस P को लेना चाहते हैं। तो इफ आई कंसिडर दिस P इन द प्लेन अदर देन दिस O, एंड इफ आई कंसिडर x, y, if I consider x, y as the Cartesian coordinates, x, y are the Cartesian coordinates, and r and theta इस P का दूसरा एक कोऑर्डिनेट है जिसको कहना चाहते हैं r and theta as the polar coordinates। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y को कह रहे हैं आप, और r, थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली है। तो पहला पहले के साथ कार्टेशियन के साथ, दूसरा दूसरे के साथ पोलर के साथ। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इस P के अवेलेबल है, ऐसा आपको समझ के आगे रिलेट करना है दोनों के बीच। तो ये r थीटा है P का पोलर कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि इस P का ओरिजिन से डिस्टेंस, इसके डेफिनेशन से क्या होगा, r होगा, क्योंकि उसका पहला पोलर में जो r होता है वो क्या देता है आपको, उस P का डिस्टेंस ओरिजिन से मतलब पोल से। तो पोल आपको O में है, और उस P तक का डिस्टेंस उसके पहले वैल्यू के साथ होता है, और उस OP ने जो OX के साथ पोलर एक्सिस के साथ जो एंगल किया है, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, पॉजिटिव होगा, उस एंगल को कितना कहेंगे,
जो आपने यहाँ सेकंड पोजीशन पे वैल्यू दी है, तो थीटा है उसका, दैट इज वेक्टोरियल एंगल थीटा। तो ये एंगल इस ट्रायंगल का कहो, या फिर ओपी ने ओएक्स के साथ किया है, उसको आप थीटा कहेंगे। तो आर डिस्टेंस होगा पी का, और ओपी का एक्स के साथ जो एंगल है वो थीटा है। और दूसरी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है जिसको आप कह रहे हैं एक्स एंड वाई। अब एक छोटा सा वर्क करेंगे, इस पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स के ऊपर, जिसको आप कह रहे हैं पीएम। तो पीएम अगर एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका दूसरा यूज ऐसा है कि अगर पी के एक्स एंड वाई उसके कोऑर्डिनेट्स है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आप ये दो डिस्टेंसेस को डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं अगर वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और दूसरे क्वाड्रेंट में है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, तो उसके मॉड की वैल्यू आपको अटैच करनी पड़ती है डिस्टेंस के साथ। तो ये जो ट्रायंगल मिला है आपका, कौन सा ट्रायंगल मिला है? पी एम ओ। अब इस पी एम ओ में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से यह तो 90 होगा। आपको तीन डिस्टेंसेस मिले, एक डिस्टेंस है ओ एम, इस ट्रायंगल का जो एक साइड है ओ एम, ये ओ एम क्या होता है? ये ओ एम होता है इस पी का पहला कोऑर्डिनेट, जिसको आप ये जो एक्स ले रहे, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये एक्स ही होता है, और यहाँ जो नंबर आपने मान लो अगर यहाँ 2 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 ही होता है। अगर यहाँ ये 3 नंबर है, तो आप कह सकते हैं ये डिस्टेंस ये 3 होता है। तो यहाँ का जो नंबर होता है, जैसे ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका अगर पहला कोऑर्डिनेट एक्स है तो यहाँ एक्स होगा, इसका दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जिस नंबर के पास आता है वो नंबर अगर y है, तो ये डिस्टेंस y होगा, ये y है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये पीएम y कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट इस ट्रायंगल के दो साइड इमीडिएट मिलते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। तो पहला कोऑर्डिनेट x के ऊपर जो डिस्टेंस मिलता है ट्रायंगल का ओएम, जिसको आप कह रहे हैं ओएम, वो x है, और ये परपेंडिकुलर की जो हाइट है जिसको आप कहते हैं y, और इस ट्रायंगल में जो तीसरी साइड है ओपी, इस पोलर कोऑर्डिनेट ने ऑलरेडी कंसिडर की वाली है r, और इस ट्रायंगल का एक एंगल भी आपको मालूम है थीटा, एक तो 90 है, दूसरा थीटा मालूम है। तो इस ट्रायंगल में वर्क करना चाहते हैं। अब तक आपने क्या किया है? आपने पोल लिया है, पोलर एक्सिस ली है, एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट के दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स आपने डिसाइड किए हैं। एक है एक्स वाई जिसको कार्टेशियन कह रहे हैं, दूसरा है आर थीटा जिसको पोलर कोऑर्डिनेट कह रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट से आपने क्या कहा है? ये ओपी का डिस्टेंस आर होगा, यहाँ का एंगल थीटा होगा, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आपने क्या कहा है? ये जो डिस्टेंस है ओएम, ये एक्स होगा, जिसको पहले कोऑर्डिनेट के साथ डायरेक्टली कह सकते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर है ओपीएम, उसकी वैल्यू ये दूसरे कोऑर्डिनेट में वाई की वैल्यू के जैसा ही होता है, और यह परपेंडिकुलर है, इसलिए आप इस ट्रायंगल में आप वर्क करना चाहते हैं 10वीं के हिसाब से। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पीएमओ आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा को चाहिए अपोजिट साइड इस ट्रायंगल की अपॉन हाइपोटेनस, बराबर है। तो इस ट्रायंगल में अपोजिट साइड की लेंथ क्या है? y, और हाइपोटेनस की लेंथ है r। सो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस मींस y अपॉन r। ये अगर साइन थीटा की वैल्यू है, इस r को मैं इस लेफ्ट में लेके आता हूं तो ये y की वैल्यू तैयार करता है। सो y इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस cos के साथ थीटा अटैच करता हूं, सो cos थीटा की वैल्यू को फॉर्मूला क्या कहता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, लगतची बाजू भागिले कर्ण। सो एडजेसेंट साइड इज ओएम, लेंथ इज x and hypotenuse is r. So x upon r is the value of cos theta. So cos theta is equal to x upon r. So what is the value of x? X is equal to r into cos theta. So what we have got? So we have got x is equal to r into cos theta. This is the first relation. And what is y? Y is equal to r into sin theta. So this box or this is the relation between Cartesian coordinates and polar coordinates. So we have expressed the x in terms of r and theta, as well as we have expressed the y in terms of polar coordinates, that is r and theta. So this is the relation, and one extra relation can be done by using either these two relations as well as by Pythagoras theorem. In triangle PMO, if I use Pythagoras theorem, so hypotenuse square is
base square plus height square. So r square is equal to x square plus y square. So this is one extra relation we are having. So r square is equal to x square plus y square. So we are having these two relations. So relation we have got. Now we want to use these two relations. X is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. In cosine rule, while proving cosine rule in next periods, we are using this concept. Means if I am having this P with coordinates x and y, before considering the example, this concept we are going to use in the cosine rule. What is the Cartesian coordinate of P, x and y? And what are their values in terms of polar coordinate? R cos theta, r sin theta. So this x is nothing but r cos theta. And what is y? R sin theta. So in place of y, I can write second coordinate as a y sin theta. So when any point is present, if I consider this point P, instead of writing its Cartesian coordinate, if I want to get polar coordinates in terms of polar coordinates, Cartesian coordinate in terms of polar coordinates using this relation. So in place of x, what is to be written? If I consider this distance is 3 and the angle is pi by 6, तो इस p के कोऑर्डिनेट ये दोनों का यूज करके, एक तो आप कहेंगे 3, पाई बाय 6 पोलर कोऑर्डिनेट है, और आप दूसरे लैंग्वेज में अगर कहना चाहते तो क्या कहेंगे? दूसरे लैंग्वेज में कहना है तो इसके अगर आप x एंड y कहते हैं कार्टेशियन, तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या मिलता है? r cos थीटा एंड r sin थीटा फॉर y. अब इस एग्जांपल में x की वैल्यू आपको इस रिलेशन से मिलती है r cos थीटा, और y लिखने के लिए उसके जगह पे आता है r sin थीटा. इस एग्जांपल में r की वैल्यू कितनी है? r है 3 और थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 6. तो r को 3 से रिप्लेस करो और थीटा को पाई बाय 6 से रिप्लेस करो. वंस अगेन r है तो 3 है, साइन है थीटा की वैल्यू पाई बाय 6. तो कभी आपको अगर ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है जिसमें ये डिस्टेंस मालूम है और उस ओपी का इस पोलर एक्सिस के साथ एंगल भी मालूम है, तो ये दोनों का यूज करके इस पी के कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. 3 into cos pi by 6, that is the Cartesian coordinate, this is the value of x in terms of r and theta. So this is 3 cos pi by 6 and 3 sin pi by 6. तो पहले x के लिए cos चाहिए, y के लिए sin चाहिए, सेकंड को sin, y तो सेकंड होता है तो सेकंड को sin रेशियो की जरूरत होती है. तो इस तरह से कोई भी पॉइंट प्लेन में है और उसके अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं आगे भी जाके, तो ये डिस्टेंस अगर इसकी एंगल की वैल्यू अगर मालूम है तो उसके कोऑर्डिनेट ये दोनों का यूज करके आप लिख सकते हैं. अब आगे का जो स्ट्रक्चर होगा आपको एग्जाम्पल की तरफ जाना है, जिसमें एग्जाम्पल का सिंपल एग्जाम्पल है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है. पोलर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालो, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको अगर सप्लाइड है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं. तो फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स of the point whose polar
कोऑर्डिनेट्स आर, अब इसमें पहला एग्जांपल ले सकते हैं। आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और कार्टेशियन की तरफ लेके जाना है उसको, तो उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स है, पहली वैल्यू है √2, π/4। ये रेडियन में एंगल दिया जाता है और वो डिस्टेंस यूनिट में होगा, वो सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, उसकी कोई आइडिया नहीं रहती, लेकिन यूनिट्स में है। अब जो गिवन है ये क्या है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट है। और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो पोलर कोऑर्डिनेट होता है आर और थीटा की वैल्यू। तो आप इस गिवन डाटा से कह सकते हैं कि आपके पास मालूम क्या है, आपको मालूम है आर कितना है, √2, और आपको मालूम है थीटा जो कितना है, π/4। और इसका यूज करके आप निकालना क्या चाहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है। और एक्स वाई निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, r इंटू कॉस थीटा चाहिए, और y निकालने के लिए r इंटू साइन थीटा चाहिए। तो ये रिलेशन आप अगर यूज करते हैं तो ये रिलेशन को आप यूज करो। सो वी नो दैट आप x की वैल्यू निकालनी है, जिसको आप पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पहला कह सकते हैं। तो x निकालने के लिए रिलेशन क्या है, r इंटू कॉस थीटा, और r की वैल्यू आपको मालूम है जो √2 है, इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे आपको उसकी वैल्यू रखनी है, दैट इज π/4। और इसको अगर आप आगे लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे cos π/4 से, तो cos π/4 कितना है, π/4 मीन्स 45, तो cos 45 होता है 1/√2। अब ये √2 कैंसिल होकर आपको मिलती है x की वैल्यू एज ए 1। तो पहला जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको तैयार करना था वो मिला है 1। दूसरी जो वैल्यू है y निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, r इंटू साइन थीटा यूज करो। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ r एंड थीटा, r तो आपको वही यूज करना है दोनों के लिए, तो √2 है, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू वंस अगेन सेम, दैट इज π/4। अब यहाँ भी वही स्ट्रक्चर आता है कि साइन को भी π/4 मीन्स साइन 45, और साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2 ही होता है। तो ये √2 कैंसिल होकर आपको फिर से 1 ही मिलता है। तो आपको x की वैल्यू भी 1 मिली है, y की वैल्यू भी 1 मिली है। तो इस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सो x एंड y की वैल्यू आप लिखना चाहते हैं, तो x एंड y की वैल्यू है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 है। सो दिस इज द Cartesian coordinate of the given point। जो पॉइंट आपको दिया था जिसके कोऑर्डिनेट्स पोलर फॉर्म में दिए थे, वो कोऑर्डिनेट्स आप कार्टेशियन में कितने मिले हैं, तो कह सकते हैं वो x एंड y आपको निकालना था, वो मिला है 1 एंड 1। तो इस तरह से यहाँ वैल्यू सिर्फ चेंज करके देंगे, r की वैल्यू अलग होगी, थीटा की वैल्यू चेंज करके दी जा सकती है। तो आपका टारगेट होता है यहाँ r और थीटा की वैल्यू यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के एग्जांपल्स सिर्फ ये दो चेंज करके कहीं भी कितने भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अपोजिट टाइप के एग्जांपल्स लिखेंगे, उसमें आता है फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। तो यहाँ फिर से एक बार चेंज करेंगे हेडिंग, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। अब इस टाइप का एक पहला एग्जांपल लेंगे, जिस पॉइंट के आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं √2, √2। तो ये जो दिया है आपको सप्लाइड जो है,
ये वैल्यू है एक्स एंड वाई की, क्योंकि ये कार्टेशियन है और इस एक्स एंड वाई से आपको निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ जो गिवन है वो आप लिख सकते हैं, गिवन x, y that is equal to √2, √2. So we can say x is equal to √2, y is also √2. अब इस x और y के ऊपर आपका x और y जो आपको अवेलेबल है उसका यूज करके आप निकालना चाहते हैं ये r एंड थीटा। तो x और y के ऊपर डायरेक्टली ये r डिपेंडेंट है, इस फॉर्मूले से भी आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये पहले r का स्क्वायर यूज करता है, तो ये r स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, उसको यूज करो। सो व्हाट इज r स्क्वायर? r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। So this x square plus y square means x is √2, its square, plus y is also √2, so its square. So √2 square is 2 and √2 square is 2. So we are getting this addition as a 4 and this is the value of r square. r एक डिस्टेंस है, r एक डिस्टेंस है, वो कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए जब इसका रूट लेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ सकते हैं, प्लस और -2, लेकिन -2 की कोई भी यहाँ मीनिंग नहीं है। तो आप यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं कि r की वैल्यू दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये r की वैल्यू 2 ही मिलेगी। तो आपका पहला टारगेट पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको मालूम करना था r, जो आपको मिला है 2। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा, थीटा डायरेक्टली, वैसे ये कंसेप्ट जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आप r एंड थीटा का यूज करके पोलर फॉर्म में, सेम है, उसके जैसा ही ये कंसेप्ट है। तो यहाँ आप tan में भी कन्वर्ट करके उस वैल्यू को निकाल सकते हैं थीटा के, या फिर साइन एंड कॉस की वैल्यू सेपरेट निकाल के उसको ऑब्जर्वेशन की तरफ से भी निकाल सकते हैं। तो मैं अगर इस साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ इस फॉर्मूले से, तो साइन थीटा क्या होता है? अब यही रिलेशन मैं सिर्फ ये फॉर्म में ले रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, और ये जो r है अगर ये ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट में तो ये x के नीचे आता है। तो आप कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r और sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। तो ये ऊपर का रिलेशन मैं अगर यूज करता हूँ, तो यह r को अगर इस y के नीचे ट्रांसफर करेंगे तो ये sin थीटा की वैल्यू सप्लाई करता है। तो sin थीटा क्या है? sin थीटा है y अपॉन r, sin थीटा है y अपॉन दिस r। तो y कितना है? y है √2 और r की वैल्यू क्या है? 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आपने आगे के स्ट्रक्चर के लिए। तो ये कहता है इसको नीचे के 2 को अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो 2 किसकी वैल्यू होती है? √2 इंटू √2। तो एक एक √2 कैंसिल करते हैं तो नीचे एक √2 मेंटेन होता है, ये साइन थीटा। तो वो ऐसा एंगल है साइन को अटैच किए वाला, जो अटैच करेंगे साइन को तो उसका वैल्यू मेंटेन होता है 1/√। और उस एंगल से कॉस की वैल्यू क्या मेंटेन करती है ये निकालने का टारगेट है, बाद में दोनों से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और कॉस थीटा, उस थीटा को अगर कॉस के साथ अटैच करते हैं तो कॉस के साथ अटैच करने के बाद उसकी वैल्यू इस रिलेशन से मेंटेन होती है, एक्स के नीचे वो आर आता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स बाय आर। तो एक्स आपको ऊपर यूज करना है, आर नीचे यूज करना है। तो एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स भी √2 है। आर कितना है? आर आपने 2 फाइंड किया है। यह भी वही स्ट्रक्चर, नीचे का जो 2 है उसको डबल √2 का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो √2 इंटू √2, और यहां से ये √2 इस √2 के साथ कैंसिल करते हैं तो आपको मिलता है 1/√2। एक ऑब्जर्वेशन उनके साइन के ऊपर भी देना है, साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ऐसा एक ही क्वार्टर में पॉसिबल है जो फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ साइन भी पॉजिटिव रहता है और कॉस भी पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब वो एंगल 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। तो 0 और 90 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जो साइन को भी 1/√2 मेंटेन करता है
और कॉस को भी 1/√2 मेंटेन करता है। तो पिछला अगर एग्जांपल आपने देखा होगा तो उसमें वही एक एंगल था जिसको आपने π/4 कहा था। तो 45 डिग्री के लिए बराबर है, टेबल से इमीडिएट उसको पता कर सकते हैं। तो 1/√2 की वैल्यू साइन को और 1/√2 की वैल्यू कॉस को एक ही एंगल सप्लाई करता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और जो क्या होगा, दिस implies theta is equal to π/4 that is equal to 45 डिग्री। तो आपको पता करना था r, आपको पता करना था थीटा। तो जो आपको क्वेश्चन था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है उस पॉइंट के, तो कह सकते हैं द पोलर कोऑर्डिनेट्स of the given point r। पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है, इसका मतलब क्या लिखना है, r एंड थीटा की वैल्यू। तो r की वैल्यू क्या मिली है आपको 2, और थीटा की वैल्यू क्या मिली है, आप 45 भी लिख सकते हैं, लेकिन यह कैलकुलेशन में आप π/4 रेडियन का ही एंगल मेंटेन करते हैं। तो ये π/4 ये एंगल की वैल्यू। तो इस तरह से दोनों साइड से एग्जाम्पल को आप हैंडल कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड करना है तो उस टाइम कार्टेशियन